today we are going to revise pericyclic. सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ हाँ, इजाजत है सर मैसेज करें? क्या है सर काफी लंबा है, मैसेज करें? यहाँ चैट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हो, जो आपके पास चैट बॉक्स यहाँ ऑप्शन है ना। यस सर। हाँ, आप यहाँ पे सेंड कर दो। लाइव क्लास में जो चैट बॉक्स है ना, आप यहाँ पे सेंड कर दो अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं तो। So today we are going to revise pericyclic, heterocyclic, spectroscopy, and fourth topic is biomolecule. Okay. यस नीरज सेंड करो, क्या भी टाइप कर रहा हूँ। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पेरीसाइक्लिक। सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉपर चैनल है ना उसके थ्रू आप सेंड कर दो। ठीक है, तो इन द पेरीसाइक्लिक, इन पेरीसाइक्लिक 3 parts major. First part is electrocyclic reaction. First part is electrocyclic reaction, and second part is cycloaddition reaction. Cycloaddition reaction, and third part is sigmatropic. These three are in our JAM syllabus. Sigmatropic rearrangement. Okay. So what is the electrocyclic reaction? What is the electrocyclic reaction? In the electrocyclic, if you remember, ring closing or ring opening. Okay. So this is the example of ring closing. If we heat the reaction, this is the example of electrocyclic reaction. तो इसमें आपको electrocyclic, in the electrocyclic reaction you have to remember few codes. Okay. For example, if you take this compound, this is the compound here. Okay, and one CH3 is here and one CH3 here. So both CH3 are in opposite direction. So we have few codes: O, D, C, O, C, T, S, D, T, S, C, C. These are the codes. What is the mean by O? What is the mean by O? Opposite. O is O for opposite, and opposite is what? Opposite is what? Dis. What is mean by opposite? Direction of substituent. These two CH3. Opposite means this opposite word, direction of substituents. Direction of substituents. So this reaction can take place either in the presence of thermal or in the presence of light condition. Okay. What is the mean by D? What is the mean by D? Disrotation. D is mean by disrotation. Disrotation. And C is mean by conrotation. Conrotation. And another C and T, this is the cis and trans. C for cis and trans. Okay. For example, if you take this reaction, both CH3 are in opposite direction. Okay. Both CH3 are in opposite direction. Yes or no? So here, Yes. if we heat this compound, heating means
How many electron? 6 pi electron. 6 pi electron, yes or no? Yes, sir. So 6 pi electron. This is the thermal or dis? Sorry, this is the thermal or photo? Thermal. Thermal. Thermal reaction. So first is opposite. First code is opposite. 6 pi thermal. Dis or con? Dis. 6 pi photo. Con. Con rotation. And 6 pi thermal is dis rotation. Okay. Con rotation and dis rotation. Clear? So opposite O thermal means dis rotation. So what will be the product? ODC. Code will be what? ODC. So both substituent will be in same direction. Yes or no? Both substituent will be in same direction. Yes or no? Both substituent will be in same direction. Yes or no? Yes, sir. Yes. So these code you have to keep in mind for the electrocyclic reaction. What is the code? ODC, ODC, OCT, SDT and SCC. These code are necessary. Okay? है ना? Yes, sir. तो हर साल एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है. हर साल every year they will ask at least 1 or 2 questions from the pericyclic. Okay? Anybody have a doubt? Yes, from sir. electrocyclic reaction? Any doubt from the electrocyclic reaction? Tell me. सर वो रिंग ओपनिंग वाले बता दो. रिवर्स चलना है. रिंग ओपनिंग के लिए रिवर्स से चलना है. नहीं सर ये नहीं, मतलब उसमें ना ऐसे एरो लगा लगा के वो खोल के दिखा दो रिंग. रिंग क्लोजिंग और इधर से चलेंगे तो रिंग ओपनिंग. ओके, फॉर एग्जांपल ये अब क्वेश्चन ले दो. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग क्लोजिंग. यस और नो? ओके, if you take this example, CS3, so CS3 photo. Okay, so how many, if this ring will be open, so how many total electron will be participate? If you think about like, so these bonds also will participate. This goes here, this electron goes here, and this electron goes here. So how many electron will participate total? 6. Yes or no? How many electron will participate? 6 pi. So 6 pi photo. 6 pi photo will be con. Yes, sir. Yeah, Con. yeah. Direction of substituent is what? Cis. Direction of substituent is cis. Yes or no? So here will be what? Yes, sir. After opening. Tell me. After opening. एक कोड था ना SCC. तो रिवर्स आएंगे तो क्या होगा? CCS. सेम डायरेक्शन. क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Both CS3 will be in same direction. Clear? Yes or no? This is the example of Yes, sir. ring opening and ring closing. Okay. Any doubt? Any doubt from the electrocyclic reactions? Ring opening and ring closing. 4 pi photo क्या होता है? 4 pi photo. Dis. 4 pi photo dis rotation. 4 pi thermal. 4 pi thermal will be con rotation. Clear? Yes or no? So ring Yes, opening, sir. ring closing, both is clear. Ring opening and ring closing, both clear. Yes, sir. Cycloaddition. Second point is B part, that is cycloaddition reaction. Okay. Cycloaddition reaction is also known as
4 plus 2 cycloaddition reaction. This is the cycloaddition reaction. How many pi electron? 4 pi electron. Here is 2 pi electron. Okay, if we heat this compound, क्या बनेगा? Yes or no? This is the Yes, example sir. of cycloaddition. This is known as diene, and this is known as dienophile. Okay. You can say you can name this is 4n plus 2 cycloaddition reaction. You can name this reaction also cycloaddition reaction or Diels-Alder reaction. अगर नेम रिएक्शन से इसको डिनोट करना चाहें तो दिस इज द Diels-Alder reaction. Yes or no? Yes, sir. What is the necessary condition? Diene should be electron rich or dienophile should be electron Yes. Diene should be electron rich. Electron rich. And dienophile should be electron deficient. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. And this diene should be S cis, not S trans. This diene should be S cis, not S trans. Yes or no? What is the mean by S trans? These diene. They can ask question like this: which of the following diene gives Diels-Alder reaction? Which of the following dienes give Diels-Alder reaction? First value. Second will not give because this is a S trans diene. Okay. Yes or no? S trans diene. Clear? This point is clear? Diene and dienophile. In JAM 2021, they have asked one question. Sorry. In JAM 2021, they have asked this question. Diene. One CH3 is here, and here is OMe. This is the dienophile, and second, this is the diene. So from which side this diene will react? From which side this diene will react? CH3 वाली side से. Why from the CH3 side? Sir, OM में यहाँ minus I effect show करेगा ना? OMe is electron donating group. Directly na? Double bond. So these dienophile is electron rich. This dienophile is electron rich. Yes or no? And right side dienophile is electron deficient. So this diene will dienophile will react as compared to this one. Clear? Yes or no? Yes. Anjali? So एक और क्वेश्चन था. The reactivity order of diene. One question in the JAM 2021. JAM 2021. What was the question? They have given so many questions, and they have one question with different diene. First diene. By the way, these diene have more reactivity as compared to this diene. OMe. Okay, this is electron donating, but this diene is more reactive as compared to this one. Okay, be careful. So what was that question? They have given diene and put it substituent here. NH and lone pair. Sulfur, and here is oxygen. Tell me which will donate faster electron. Tell me which will donate faster electron. Nitrogen also donate,
This sulfur also donate, oxygen also donate. Which donate faster? Electronegativity, yes or no? So this will be least, third, then second, then fourth, and then first. This is the order of reactivity. Order of reactivity of diene. Okay, so you have to take sir, care. हाँ, ये फोर्थ वाला फर्स्ट वाले से पहले क्यों लिख दिया? ऑक्सीजन अब लोन पेयर ना, और फर्स्ट वाले में कोई नो लोन पेयर, यस और नो? फर्स्ट वाले में तो कोई लोन पेयर नहीं है ना. लोन आपको क्या पता है? डाइन शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. तो तीनों एटम नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दे हैव लोन पेयर, और वो लोन पेयर क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं. तो यस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा. हाँ, यस सर. देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, और सबसे उससे कम फर्स्ट वाला. उसके बाद जो नॉर्मल डाइन्स होते हैं इस टाइप के, वो उनको पहले लिखेंगे. क्लियर? सो दिस इज द Yes. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डाइन एंड डाइनोफाइल. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रिजियो सेलेक्टिविटी. झालं सर आता. आसमा क्या बोल रहे हो तुम? What is the mean by regio selectivity? This is the OMe group, and here CO2Me. Okay, and then second point is this type of question. OMe will be here. This lone pair, this goes in resonance. So यहाँ पे क्या होता है? Delta plus, delta minus. Clear? Because this is goes in resonance, और यहाँ पे delta minus. This goes here, this goes here. ये अटैक करता है यहाँ पे. So here 1-2 addition. Yes or no? Yes or no? Yes sir. 1-2 addition. अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं देख रहे हैं. 1-2 addition. 1-2 addition. Not क्या this type of addition, क्या ये वाला addition होगा? OMe. Can we write like this? OMe. ये यहाँ पे अटैक करेगा. 1-3 addition. नहीं. Yes or no? बट इसके केस में अगर मैंने यहाँ पे डाइन्स लिया, देखो ध्यान से, CO2Me. सो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है. सो नेगेटिव शुड बी interact with positive. Yes or no? So this and will interact with this one. So कैसे हो जाएगा ये? 1-2 addition और 1-2 addition और 1-3 addition और 1-4 addition. Tell me. वन थ्री 1-3 or 1-4. Yes or no? 1-4 addition. Yes or no? Yes sir. This is the regio selectivity. And then next point in cycloaddition. What is the next point in cycloaddition? Stereochemistry. Stereochemistry. Okay. Suppose this is the OMe. So this is the outside group below the plane. Yes or no? Yes or no? Yes sir. ये जो आउटसाइड ग्रुप होंगे वो कहाँ जाएंगे? बिलो द प्लेन. बिलो द प्लेन. और अगर कोई ग्रुप, इफ एनी ग्रुप विल इंटरैक्ट, अगर कोई ग्रुप इनसे इंटरैक्ट करेगा तो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा. सपोज दिस इज द डाइन और डाइनो बाय ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर इंटरैक्टिव ग्रुप होगा लाइक ओ CO2Me इंटरैक्टिव, ठीक है, तो CO2Me का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ. नॉन इंटरैक्टिंग
यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो नॉन इंटरेक्टिव होगा, यस और नो? हाँ सर। सो इधर की तरफ जो इंटरेक्टिव होगा और ये नॉन इंटरेक्टिव किधर की तरफ चला जाएगा, नॉन इंटरेक्टिंग अबव की तरफ, और ये इंटरेक्टिंग अगेन बिलो द प्लेन। बिलो क्लियर? द प्लेन। जो ये इधर वाले होंगे, ये बिलो द प्लेन, इधर वाले क्या होंगे, अबव द प्लेन, यस और नो? यस सर। So this is the stereochemistry of D-Selder reaction. Okay, one code was there, DARS. What was that? D-Selder reaction first. D-Selder reaction first regioselectivity, then stereochemistry. So first you have to decide regioselectivity, then stereochemistry. Clear? यस सर। Done. So any doubt in electrocyclic and cycloaddition reaction? Any doubt? नो सर। No. Third point is sigmatropic. What is the sigmatropic rearrangement? Maybe 1 3 2 3 3 3 sigmatropic. Okay, I'm going to give one example. OH and here is CH3. If you heat the compound 1 2 3, say 1 2 3, so break the 1 1 bond. ठीक है, तो ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा आपको? How the compound look like? CH3 electrocyclic 3 3 sigmatropic. Okay, बोलो, any doubt? Electrocyclic, cycloaddition and sigmatropic. बोलो बच्चों, any previous year question? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें इन टॉपिक से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए ग्रुप ट्रांसफर का। कौन से क्वेश्चन का? जो सर ग्रुप सर ट्रांसफर होता है। ग्रुप ट्रांसफर इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है? हाँ, इट इज नॉट इन योर आईटी जैम सिलेबस। बताए थे तो हम सोचे कि है। आप बताए थे ना पढ़ाते समय। क्लास के टाइम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ताकि आपको क्वेश्चंस वगैरह अगर आ गया तो दिक्कत ना हो, बट नो नीड रिवीजन फॉर दैट टॉपिक। ओके, सो इतना टेंशन नहीं लेना। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ पेरीसाइक्लिक का, देखते हैं कौन बच्चा कर लेता है। दिस वाज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको मुझे बताना है। जैम 2016 का क्वेश्चन, this is the jam 2016 question. Okay, numerical answer type. Number of compound gives Diels-Alder reaction. Question is that number of compound Diels-Alder reaction. Okay, tell me correct answer. सर 5। Jam 2016. बोलो बच्चों, कितना सर हो गया? 4।
4 5 कुछ भी? हाँ सर, एक में डाउट है, यदि वो है तो 5, नहीं है तो 4। कौन सा? सर First- थर्ड वाला फर्स्ट विल गिव और नॉट? देगा सर ये? फर्स्ट विल गिव और नॉट? यस, बोलो। यस सर। सेकंड? यस सर। थर्ड? सर इसी में डाउट है। यस सर, देगा सर। फोर्थ? सर देगा इसके सर। साइड वाला जो, बोलो बोलो बोलो। सर जो इस वाली रिंग के साइड वाला जिसमें 3 बॉन्ड है, इसका कुछ नहीं देखेंगे? नहीं उसको नहीं, ये जो मिड वो यही ये वाला देगा ना सर। अच्छा ओके सर। हाँ सर, फोर्थ वाला भी देगा। फिफ्थ? देगा सर। ये देगा, ये भी हाँ। बिल्कुल देगा। नहीं देगा? नहीं देगा, नहीं ये देगा। भी नहीं देगा, ये देगा। उसके बाद देगा। कितने हो गए? 6 हो गए सर। 6। क्लियर? यस और नो? बोलो बच्चों, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। पेरीसाइक्लिक के और कोई क्वेश्चंस उन्होंने तो 2021 में क्वेश्चन आया था। किसी के पास पेपर है जैम 2021 का? हाँ सर। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। जैम 2021 क्वेश्चन। What will be the product? Tell me, what will be the product? What will be the product? Tell me. जैम 2021 कितना इजी क्वेश्चन था। तुम लोग अगर होते तो एक क्वेश्चन तो करके आ ही जाते। इसको तो नहीं छोड़ते ना कम से कम। बोलो बच्चों। सर ODC। ODC. What? O means what? Opposite. अपोजिट। So O opposite direction. 6 pi thermal. डेस। 6 pi thermal disk and then C. क्लियर? सो ये आपका करेक्ट आंसर था उस टाइम। डन? यस सर। सर वो करा दो, सिग्मा ट्रोपिक वाले क्वेश्चन हो तो। कौन से वाले? सिग्मा ट्रोपिक। सिग्मा ट्रॉपिक से अभी तो एक क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मा ट्रॉपिक। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो। सिग्मा ट्रॉपिक से भी एक क्वेश्चन देखो। सिग्मा ट्रॉपिक में बस आपको 3 देखना। सर जैम वो बाकी देखते 2 3 ये वाले। हाँ वो देखते हैं, तो रिवाइज करना है उसको, नोट्स को। आप नोट्स को रिवाइज कर लेना, हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसमें कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, साइक्लो एडिशन और इलेक्ट्रोसाइक्लिक से ही ज्यादातर जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, मेजोरिटी। ठीक है। यस सर। तो ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, और हीट किया हुआ है। मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आपको प्रोडक्ट बताने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है this is the first option, and
Second option. Third option is third option, and then fourth option आपका है बोलो जैम 2005 सर ये फोर्थ वाला है। जैम 2005 का क्वेश्चन है। जैम 2005 बोलो। अंजलि जैम 2005 का क्वेश्चन है। टेल मी करेक्ट आंसर। थ्री सिग्मा ट्रॉपिक and then tautomerization. I am giving him 3 sigma tropic and then tautomerization. 3 sigma tropic. थर्ड नंबर वाला। Ranvasu, what is the correct answer? सर मेरा तो सी आ रहा है। सब मेरा फोर्थ आ रहा है। अंजलि 4 कैसे? 3 sigma tropic. Third is correct answer. 1 2 3 1 2. So 3 will क्या 3 अटैच हो जाएंगे? हाँ सर 3 उसी वाली पोजीशन पे तो अटैक करेगा ही। देखो थोड़ा सा ध्यान से तो देखो, दिखा भी 3 सिग्मा ट्रॉपिक अगर आपने ब्रेक किया 1 2 के बीच में बॉन्ड बनाया तो ये बनेगा, ये इससे जुड़ेगा ना, ये है ना थर्ड वाला कार्बन, ये थर्ड वाला जुड़ेगा। हाँ सर ये सुनो, ये 2 ये 1 और ये CH3 क्लियर। ये सुनो, यस सर टाउटोमराइजेशन क्लियर। ये सुनो, यस सर। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। ओके एक और क्वेश्चन है मेरे पास 3 सिग्मा ट्रॉपिक का, जैम 2010 का क्वेश्चन। 5 ईयर के डिफरेंस पे उन्होंने 3 सिग्मा ट्रॉपिक पूछा, 15 पे फिर 20 में पूछा, फिर नहीं ऐसा नहीं 5 में पूछा और 10 में पूछा। तो क्वेश्चन ये है आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन। सेकेंड ऑप्शन इज डबल बॉन्ड CHO। CHO CHO। What will be the product? Do it fast. सर ये भी थर्ड वाला है। बोलो अंजलि। सर इसमें भी होगी कि टोटोमराइजेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। 1
2 3 1 2 3 clear? हाँ सर। What will be the correct answer? What will be the correct answer? थर्ड सर। थर्ड आ रहा सभी का? बोलो, थर्ड आ रहा सभी का? यस और नो? In the heterocyclic reaction, two compounds, pyrrole and pyridine. Okay. इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कहां ज्यादा अटैक करता है? या तो 2 पे करेगा या तो 3 पे करेगा। 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पे होता है? Which position is favorable for electrophilic addition on the pyrrole and pyridine? बोलो बच्चों, which position is favorable? Tell me. अंजलि। सर पायरोल में 2 और 5 पोजीशन पे और इसमें था पेरिडीन में 3rd पोजीशन पे फेवरेबल होगा। हाँ, क्लियर? अंजलि। यस सर। ये 3rd पोजीशन। अगर क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड आ जाए, क्या नाम इसका, नाम बताओ। इसमें कहां पे अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक होगा? बोलो बच्चों। 1 2 3 4 4A 5 6 7 8। यस और नो? बोलो, विच पोजीशन? C5 अटैक। यस और नो? तो हेट्रोसाइक्लिक में ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पे अटैक करेगा। पायरोल, पायरिडीन, ठीक है, इन सब कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां पे अटैक करेगा, कौन पे, और इनकी प्रिपरेशन की जो भी रिएक्शंस है वो आप एक बार देख लेना। क्लियर? तो इन चैप्टर से हेट्रोसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कमी की होते हैं। ओके, यस और नो? यस। तो आप प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरॉन, पायरिडीन और उनकी केमिकल रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेट्रोसाइक्लिक में क्या क्या सिलेबस है? पायरोल, पायरिडीन, फ्यूरॉन, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यस और नो? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये चीज आप देख लेना। उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन पूरा ऐसा कुछ रिवाइज करने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यस। बोलो बोलो बच्चों। एनीबॉडी हैव अ डाउट इन हेट्रोसाइक्लिक? बोलो। पेरीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, एनी डाउट? नो सर। एक बार नोट्स आप अपने रिवाइज कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायोमोलिकुल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या पढ़ना है हमें? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, 1HNMR, और हमें सिर्फ नंबर ऑफ सिग्नल देखने, नंबर ऑफ सिग्नल एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल। ओके, ओनली नंबर ऑफ सिग्नल एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल, एंड देन IR spectroscopy, IR spectroscopy. In UV spectroscopy, Woodward rule. Yes or no? बोलो बच्चों। हाँ सर। What was the Woodward rule for the calculation of lambda max? Woodward rule क्या है? UV spectroscopy में Woodward rule क्या है? बोलो।
ओके, वुडवर्ड रूल क्या है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, किसी को याद है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स, किसी को याद है वुडवर्ड रूल? एनीवन रिमेंबर? बोलो, एनीवन रिमेंबर वुडवर्ड रूल? यस और नो? बोलो बच्चों। अरे किसी को याद है? डाइन के लिए क्या था? होमोएनुलर डाइन, हेटेरोएनुलर डाइन, रिमेंबर या ना? अरे भाई भूल गए तुम। होमोएनुलर डाइन के लिए कितनी वैल्यू थी लैम्डा मैक्स की? 253। हेटेरोएनुलर के लिए कितनी थी? 214, है ना? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या था? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी वैल्यू थी? 5। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए कितनी थी? 5। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए कितनी थी? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। जैम की कोई क्वेश्चन में आपको मिला इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में? नहीं सर। तो पूछे जाने के चांसेस कम है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेंशन कर दिया है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर मे बी। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए करो। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स। यार मैं यहाँ पे CS3 भी जोड़ देता हूँ। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स, बोलो। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स, बोलो बच्चों। वैल्यू सारी आपके सामने लिखी पड़ी है, टेल मी। बोलो। टू 273। बाकी बच्चे बोलो। हिमांशी, हिमांशी कितना आंसर आया? हिमांशी कितना आंसर आ गया? बोलो। रणवासु, सिद्धार्थ, अरे क्या बात है भाई। यस सर। कितना आंसर आया? 273 होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर? होमोएनुलर। होमोएनुलर 253। देन हाँ, देन सर चार जगह से कटेगा ये, और हाँ ये दे रहे हैं। 20। हाँ 20। ओके, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं, एक्सोसाइक्लिक नहीं है। ये है ना, देखो यहाँ पे है ये दूसरी वाली सेकेंड रिंग के उसमें देखेंगे रिस्पेक्ट में, इस वाले रिंग के रिस्पेक्ट में, तो एक डबल बॉन्ड ये एक्सोसाइक्लिक आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। 5। अच्छा ओके, यस सर। ओके कितना सर। आएगा? 278। लैम्डा मैक्स आ जाएगा 278। क्लियर? नैनोमीटर, दिस इज इन नैनोमीटर। अंजलि, यस सर। क्या हुआ, आंसर नहीं कर रहे हो? सर जब मुझे पता चला ना कि ये क्वेश्चन आते नहीं, मैंने किया ही नहीं है। अच्छा, ओके।
So UV स्पेक्ट्रोस्कोपी डन. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आते हैं. So वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंपेयर करते हैं. व्हाट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? तुम लोग कुछ तो बताओ, तुम लोगों ने पढ़ तो रखा है ना. बॉन्ड को स्ट्रेच करके देखती है ना, यस और नो? हाँ सर, उसमें वो- स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल करके. हाँ, बॉन्ड स्ट्रेचिंग देखते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो IR फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फॉर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड IR फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बोलो. फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड IR फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, है ना? हाँ यस सर. मजबूत बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए, उसको स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना. यस सर. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए IR फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो अगर अगर आप बात करो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपको वो ध्यान देना है. कुछ क्वेश्चंस हम IR फ्रीक्वेंसी के करते हैं. जैसे मान लो ये C सिंगल बॉन्ड O है, कहीं पे C डबल बॉन्ड O है और C ट्रिपल बॉन्ड O है. ओके, IR फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? C ट्रिपल बॉन्ड O की. ट्रिपल बॉन्ड होगी. इसकी IR फ्रीक्वेंसी. तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? IR फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कि डबल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा. इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, यहाँ पे एक स्टार मार्क के पॉइंट लिख लो. इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो IR फ्रीक्वेंसी, ज्यादा होगी. IR फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं आपके उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ढेर सारे. ठीक है, तो एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हमने जोड़ दिया NH2 ग्रुप, दिस NH2 ग्रुप. ओके, यहाँ पे OH ग्रुप. सो विच वन है, किसकी IR फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? फर्स्ट C बॉन्ड O की अगर कंपेयर करना है, इफ वी कंपेयर द IR फ्रीक्वेंसी ऑफ C बॉन्ड O, कंपेयर IR ऑफ C बॉन्ड O. ओके, बताओ, कंपेयर करो जल्दी जल्दी, बोलो बच्चों. कंपेयर द IR फ्रीक्वेंसी. बोलो भाई, कंपेयर द IR फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट वाले की ज्यादा रहेगी. देखो कैसे, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नाइट्रोजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, गोज इन Yes. रेजोनेंस. yes or no? Here oxygen will donate. So resonance energy कहाँ पे मैक्सिमम है? Where the resonance energy is maximum? More resonance. Where is the more resonance? Or you can say maximum resonance. ऑक्सीजन वाले पे. Nitrogen have less electronegative. Yes or no? हाँ सर. So nitrogen donate करेगा अच्छे से. हम्म. If nitrogen will donate faster as compared to oxygen, then what will happen? This C double bond O convert into C single bond. Yes or no? Yes or no? यस सर. So ये इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा इसमें एज कंपेयर टू सेकंड वन. यस और नो? यस सर. सो IR फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम होगी? यस और नो? अंजलि, सपोज एनी Yes, sir. डायरेक्टली C डबल बॉन्ड हो कीटोन, if we take any amide, which one have high IR frequency? This will goes here, this will goes here, but here in the first compound completely double bond, so IR frequency will be high. Yes or no? More the resonance in CO bond, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा?
बॉन्ड ऑर्डर विल बी लो, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और आईआर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखते हैं कौन बच्चा क्वेश्चंस करता है। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH है। Which compound have higher IR frequency? Compare the IR frequency. Second question. Compare the IR of CO bond. Clear? Compare the IR of CO bond. बोलो। सर फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। देखो, नहीं तो कम होगा। फर्स्ट वाले का कम होगा, सेकंड वाले का? अंजलि एक बार फिर से। फर्स्ट वाले का कम होगा। NH2 वाले का कम होगा। क्यों? वही इसमें सर रेजोनेंस में जाएगा तो सिंगल बॉन्ड फैक्टर आ जाएगा इसमें ज्यादा। इसमें क्योंकि 100% जाएगा, और इसमें क्या होगा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो यहाँ पे 100% जा रहा है, और इधर मान लो 50-50 जा रहा है, तो ज्यादा रेजोनेंस आएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, है ना? सो हाँ आईआर फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हो जाएगी? सेकंड। सेकंड वाले की। सेकंड हैव ग्रेटर आईआर फ्रीक्वेंसी, यस और नो? बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा, देखते हैं कौन बच्चा करता है। वन मिनट टाइम। BADC। BADC फर्स्ट आंसर, BAD and then C. Any other answer? कोई और बच्चा आंसर करे? Any other answer? सर ABDC। ABDC, दो अलग अलग आंसर आ गए भाई, कोई एक और बच्चा करो, देखो। अंजलि नहीं ने सर आंसर दिया BADC है। BADC, आंसर चेंज हो गया, चलो क्यों, एक्सप्लेन। क्योंकि सर बी वाले में मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना इसे। आई हाँ आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विड्रॉ करेगा माइनस आई से, विड्रॉ करेगा। तो ये माइनस आई लगाएगा, ये विड्रॉ करेगा इधर की तरफ, तो ये अपना इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुट करेगा, है ना? और इसमें तो रेजोनेंस होगा, और इसमें भी रेजोनेंस होगा, यस और नो? सो बी विल बी हाईएस्ट, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? हाँ सर। देन A, then D, and then C. Clear? C। यस सर। Next question. Do the next question. Next question.
बोलो बच्चों। सर DCBA। DCBA करेक्ट आंसर, बट कैन यू एक्सप्लेन? हाँ नहीं सर, एक्सप्लेन तो शायद नहीं कर सकते। क्यों एक्सप्लेन क्यों नहीं करोगे भाई? ऐसा कैसे नहीं सर, चलो? मतलब थोड़ा थोड़ा सा पता है कि इस मतलब जो डी वाला है इसमें ना, मतलब रिंग स्ट्रेन वगैरह है इसमें, हाँ यानी हाँ। कुछ ऐसे करके। हाँ बस। प्रणवासु कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? हिमांशी, सिद्धार्थ, प्रणवासु आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर इसमें Can you- परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वाला बोल सकते हैं कुछ? हाँ हाँ हाँ, वही याद आ गया था। हाँ तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है इसमें, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा है। बॉन्ड परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से। सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ। हाँ देखो क्यों, कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा? लो होगा यहाँ पे। तो इस वाले में परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा? परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि एक जगह कम होगा तो दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा। ये सुनो, तो परसेंटेज हाँ सर। कैरेक्टर इधर हाई होगा, और परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो हायर फ्रीक्वेंसी हाइट ज्यादा होगा। ज्यादा क्लियर? होगी। यस सर। चलो मैं जैम का एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूँ, हायर फ्रीक्वेंसी से। अच्छा, हायर फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूलर मास पे भी देखते हैं। बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, रिड्यूस मास, यस और नो? यस सर। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है कंपाउंड के लिए तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। रिड्यूस मास। अगर सब कुछ सेम हो तो आपको रिड्यूस मास से देखना। जैसे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, एक जैम 2014 में, एक जैम 2018 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? सॉरी, द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, द कार्बोनिल stretching frequency is highest for, ठीक है? जैम 2014 का क्वेश्चन, दिस इज द जैम 2014 क्वेश्चन। जिससे मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा वही बच्चा आंसर करेगा, ओके? जिस बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही बच्चा आंसर करेगा। Cl यहाँ पे CH3 है। हिमांशी, हिमांशी क्लास में नहीं है, भाग गई सर। कोई बात नहीं, हिमांशी अच्छा बच्चा है। चलो बताओ, इसका मुझे बता दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सिद्धार्थ यस सर। बताओ, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर बता दो। सर 3-1-2-4 3-1 1-2-4 है? नहीं नहीं, फिर से सोचो। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? Cl है ना वो, अच्छा। थोड़ी हैंड राइटिंग। सर सबसे ज्यादा इसमें थर्ड वाले के लिए होगी।
थर्ड के लिए होगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसमें होगी इसमें होगी ऑक्सीजन वाले में। हाँ सेकंड में होगा। ऑक्सीजन तो लोन पे डोनेट करेगा ना अंजलि, हाँ सर, नेट करेगा वो तो। ठीक है। सेकंड, उसके बाद फर्स्ट एंड देन फोर्थ। क्लियर? यस सर। यहाँ पे बतानी है सीओ बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑर्डर लिखना आपको। चलो, सर इसमें भी ए, फिर हम्म। बी, और फिर आएगा इसमें क्या ये क्या लास्ट वाला कौन आएगा? ए, फिर बी। बी क्यों आएगा? सर वो दोनों साइड रेजोनेंस, मतलब किसी भी साइड कर सकता है ना वो। किसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है? बोलो 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 बोलो। एक चीज तो फिक्स है कि देखो, ये इधर की तरफ डोनेट कर रहा है, बेंजीन भी डोनेट कर रहा है ना? हाँ इसमें सर। केवल एक साइड से डोनेट हो रहा है और इसका इधर भी दोनों तरफ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एक डोनेट कर रहा है और एक खींच रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में एक डोनेट कर रहा है। क्लियर? सो सबसे लो किसकी हो जाएगी? सी। सी की। उसके बाद डी, बी, ये। सबसे लो किसकी हो जाएगी? सी की। हाँ सर, फिर अब डी देखो, की। इसमें तो 50% ही हो रहा है ना, समझ करो तो। फिर डी की हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सेकंड, इन द सेकंड ऑक्सीजन अपना लोन पर कुछ ही डोनेट करे, कुछ इधर डोनेट करे। इसमें तो पूरा बेंजीन डोनेट कर रहा ना। उसके बाद आपका आ जाएगा बी, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा? ए। ए। सर यही तो क्लियर? बोला था मैंने। हाँ, तो मैंने गलत थोड़ी बोला था सर, आपने सही भी तो नहीं बोला था। और क्या। हाँ, एक सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, CHO CH3। Correct order of stretching frequency, CO stretching frequency. Last question, then we'll move on 1 HNMR. सर सी, हम्म, बी, फिर अब ये नहीं पता सर, CS3 वाला पहले आएगा और OMB वाला पहले आएगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3214 Which one donate more electrons? सर OMB वाला। हाँ, so 3, then 2, 2 1, फर्स्ट और फोर्थ। clear? यस सर। Next topic is 1 HNMR. 1 HNMR, एक मैंने कोड बताया था, इसमें एक चीज देखना होगा, नंबर ऑफ सिग्नल। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? नंबर ऑफ सिग्नल से, एंड आपको डेल्टा वैल्यू ऑफ सिग्नल, कि वो सिग्नल कौन से डेल्टा वैल्यू पे आ रहे हैं। क्लियर? यस और नो? डीसिल्डेड हायर डेल्टा वैल्यू, DDHD, यस और नो? डीसिल्डेड हायर डेल्टा वैल्यू, यस और नो? बोलो बच्चों।
तो एक टेबल अभी इसकी बनाते हैं, फिर नंबर ऑफ सिग्नल देखते हैं। सबसे आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊं, आपको खुद बोलना होगा, ठीक है, कि कितने पे आता है। रनवासु क्या बोल रहे हो? 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 था, 9 ऐसे था ना। बोलो, 0 से लेकर के अगर sp3 कार्बन है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन अगर वो sp3 कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन जो CH3 वाला कार्बन है, अगर ये sp3 से अटैच्ड है तो 0 से लेकर 1.5 तक आएगा, है ना? हाँ सर। ये सुनो, यस सर। अगर वो sp2 तक है, तो अगर वो CH3 वाला कार्बन अगर वो sp2 से अटैच्ड है 2.5 2.5, अगर वो हाइड्रोजन या वो कार्बन, ये कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, CH3 किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, तो 2.5 से 4.5 तक। इसके बाद क्या आता है? अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली कहाँ से अटैच है, इसके बाद क्या आता है, जल्दी बोलो। sp2 कार्बन से अटैच है तो अगर हाइड्रोजन मतलब 6.5 डायरेक्टली अटैच sp2 कार्बन, उसके बाद बेंजीन से अटैच तो हाँ, 8.5। उसके बाद एल्डिहाइड, और सबसे लास्ट में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि डेल्टा डीसिल्टेड होगा ना, H प्लस, डीसिल्टेड हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। क्लियर? सो आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे टैकल करना है, पहले ये देखना है कि कितने क्योंकि जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको, ऐसा नहीं कि जैसे गेट और नेट में क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी हाई लेवल के होते हैं, उसमें डेटा आपको ढेर सारा गिवन होता है और उस डेटा के बेस पे आपको स्ट्रक्चर बताने होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, आपको सिंपल सी 2 ही चीजें पूछेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने और किसकी डेल्टा वैल्यू कहाँ पे। तो आपको बस इतनी चीजें याद रहेंगी, तो आप क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। क्लियर? नंबर ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल भी बताया था मैंने, हाँ ना? हाँ सर। तो चलो नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ते हैं, उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन देख लेंगे, है ना? यस सर। नंबर ऑफ सिग्नल कितने होते हैं, बोलो बच्चों, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होते हैं? जैसे 1H की जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने होंगे सिग्नल, यस और नो? अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, हाउ मेनी सिग्नल, हाउ मेनी सिग्नल? 2 सिग्नल। एक सिग्नल, क्योंकि रिंग फ्लिपिंग होगी, हाँ है ना? अच्छा, अगर मैं इस रिंग को ब्लॉक कर दूं, ऐसे करूं, यहाँ पे कोई बल के ग्रुप लगा दूं, CH3 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 CH3, now it's blocked, one hydrogen is here, one hydrogen here. How many number of signal? Number of signal, tell me. बोलो बच्चों, 1 for axial and equatorial, yes or no? Axial, equatorial, these two, and 1 for these 3 hydrogen, yes or no? So total, yes or no? बोलो बच्चों। यस सर। Find the number of signal in following compounds. ठीक है, CH3, यहाँ पे CH है, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH3, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है। बोलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। सिमेट्री इसमें दिख रही, अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री दिखे ना, तो उसको सिमेट्रिकल भाग में तोड़ लेना, कट कर लेना। यस सर। चलो, फर्स्ट वाले में कितने सिग्नल हो गए अंजलि?
एक सेकंड सर, जिसने जैसे ये क्वेश्चन नहीं आता उसके कर सकते हैं ना ऐसे, स्किप मतलब समझा नहीं। मतलब छोड़ सकते हैं ना सर, ये मैंने छोड़ दिया है नंबर ऑफ सिग्नल वगैरह। अरे क्यों, क्वेश्चन एक दो तो आएंगे ना। सब पता तो रही थी, पर उस टाइम जब आपने कराया था मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ ही दिया लास्ट ईयर। तो पूछ लेना चाहिए था आपको ना कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा नहीं करना। कर लेना दोबारा आप, ठीक है, ओके सर। क्योंकि इसे एक क्वेश्चन तो आएगा ना। हाँ सर। बोलो। तो आपको इस चीज को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कितने सिग्नल आएंगे पहले वाले में। बोलो। ये CS3 और ये CS3 के सेम आएंगे, ये ए और ये, हाँ है ना। एक ये आएगा, Yes, sir. ये और ये। हाउ मेनी सिग्नल, हाउ मेनी सिग्नल, 4 सिग्नल। 4, sir. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाँ है ना। ऑर्थो पे भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। कितने सिग्नल आएंगे बोलो। हाउ मेनी सिग्नल, 1 सिग्नल हियर, 2 3 4 सिग्नल। क्लियर। Yes, sir. सर हाँ। मुझे ना इसमें यही नहीं पता चलता कि जैसे मान चलिए दोनों ओ एच एच है, अब इन दोनों का एक मानेंगे, कभी कभी इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इसी ये नहीं हो रहे मुझसे। कौन से बेंजीनिंग से जो जुड़े हैं। हाँ सर, मतलब कोई भी ऐसे हाइड्रोजन है उसका, कहीं तो उन मतलब दोनों को एक ही करके कर लेंगे और कहीं अलग अलग कर देंगे उनका। अच्छा देखो, मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मतलब यहाँ पे कार्बन है, इधर मैंने CS3 लिखा, इधर मैंने CS3 लिखा, और इधर मैंने CS3 लिख दिया, और इससे देखो मैंने CH2 लिखा, इससे मैंने देखो CS3 लिखा। अब एक बात बताओ कि इस कार्बन की जो ज्योमेट्री है, जहाँ पे तीनों CS3 जुड़े हैं, तो इनका इन्वायरमेंट क्या आइडेंटिकल है, यस और नो, आइडेंटिकल इन्वायरमेंट, हाँ सर। क्योंकि तीनों एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना। हाँ तो अगर ये तीनों एक ही ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इनका इन्वायरमेंट आइडेंटिकल है, तो इस 9 हाइड्रोजन के लिए कितना आएगा, एक मतलब एक। इनका एक सिग्नल आ जाएगा। अब देखो इस CS2, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, क्या इनका इन्वायरमेंट और इस CS3 का सेम है, अलग अलग है। अलग अलग है। अलग अलग है, तो एक सिग्नल इसके लिए आएगा, एक सिग्नल इसके लिए आएगा। अच्छा। हाँ सर। अब देखो बेंजीनिंग पे अगर मान लो मैंने सिर्फ बेंजीनिंग लगाया, तो क्या इसके 6 के 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, सभी तो सेम है ना। हाँ सर सेम है। इसके पड़ोस में ये, इसके पड़ोस में ये, इसके पड़ोस में ये, सभी तो सेम है। तो कितने सिग्नल आएंगे इसके लिए, 1 सिग्नल। लेकिन अगर मान लो ऐसे ग्रुप लगा दिया आपने, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, तो Cl के देखो ये पड़ोस में H है, ये पड़ोस में H है, क्या इसका और इसका एनवायरमेंट सेम है। नहीं सर। अरे देखो ना, इसके पड़ोस में इधर Cl, इसके पड़ोस में भी Cl। हाँ सर सेम है इनका। तो जो ऑर्थो वाले हैं इनका एनवायरनमेंट सेम है। तो दोनों ऑर्थो के लिए कितना आएगा, एक सिग्नल इसके लिए आएगा, वही उतना इसके लिए भी आएगा। हाँ। हाँ सर। तो ये वाला जो है और ये दोनों सेम एनवायरनमेंट में होंगे, पर एक इसके लिए ऑर्थो मेटा पैरा। सर नीचे वाले को ऐसे नहीं कर सकते कि जो एच इसके वाली साइड में एच सेम है, ये वाला सेम है। ये वाला H, हाँ सर। Cl से दूरी भी तो देखो, Cl से दूरी तीसरे वाले की कुछ दूरी है, फोर्थ वाले की दूरी अलग अलग है। नहीं सर, जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ना, इसके साइड वाले जो हाइड्रोजन है दोनों, ये इन्हें नहीं बोल सकते कि ये दोनों अलग अलग। कौन से मेटा वाले दोनों, हाँ सर। कैसे अलग अलग बोलेंगे। इस हाइड्रोजन से यहाँ दूरी पे क्लोरीन, इतना ही दूरी पे यहाँ पे क्लोरीन, इस हाइड्रोजन के बगल में H, इस हाइड्रोजन के बगल में H, है ना। हाँ सर। बोलो। तो इस इन्वायरमेंट तो इन दोनों का सेम हो गया ना। अब कोई बच्चा बोले कि सर क्या फोर्थ पैरा का भी सेम होगा, नहीं, क्योंकि पैरा से देखो क्लोरीन दूर है और मेटा से क्लोरीन अलग डिस्टेंस पे है। तो आप बोलोगे एक ऑर्थो का, एक मेटा का और एक पैरा का, 3 सिग्नल आएंगे ना सर देखो, जो नीचे वाला हाइड्रोजन है, इसका साइड वाला हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन, तो ये हाँ ठीक है सर, आ गया समझ, आ गया। Cl को भी तो देख लो, Cl दूर है ना। हाँ सर। हाँ। चलो एक दूसरा क्वेश्चन इस पे कर लो कि अगर मान लो मैंने इधर देखो, आपको बस इन्वायरमेंट देखना कि इधर आपने Cl लगा दिया, इधर आपने CH3 लगा दिया, तो बताओ
हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल? देखो ये CS3 के लिए एक सिग्नल आएगा, बोलो अब Yes, बताओ sir. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? क्या इस हाइड्रोजन की इन्वायरमेंट में, देखो इधर Cl है, इस हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट में इधर CS3, क्या दोनों का सिग्नल सेम आएगा, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा सर। अलग 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 आएगा। आएगा। गुड, ये इसका एक सिग्नल, इसका एक सिग्नल, इसके इसका इन्वायरमेंट देखो और इसका इन्वायरमेंट देखो, क्या दोनों सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग 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 है। अलग है, बस गुड। तो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, ठीक। टोटल कितने सिग्नल बनेंगे? 5। 5 कहाँ से आ गए? अबे CS3 का कौन कहाँ जाएगा? हाँ सर। चलो अगर मान लो यहाँ पे Cl लिख दिया, यहाँ पे Cl लिख दिया, अब देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, अब बताओ कितने सिग्नल बनेंगे? इस हाइड्रोजन दो का ही इन्वायरमेंट बनेंगे। और इसका इन्वायरमेंट सेम है हाँ सर, ये तो सेम है। कि इन दोनों के लिए एक सिग्नल आएगा, अलग अलग आएगा? एक ही आएगा। एक आएगा। इन दोनों का सेम इन इन्वायरमेंट, दोनों अलग अलग अलग? सेम ही तो है। सेम ही है। कितने सिग्नल आ गए? 2। 2 हो गए काम। यस सर, सिंपल था ये तो। हाँ हाँ, बस तूने करा नहीं है। हाँ सर। ये CS3। चलो अब बताना कितने सिग्नल आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल? तीन आएंगे सर सर। 3। 3 आएंगे। गुड। यहाँ पे लगाया मैंने CO, यहाँ पे लगाया CS2, यहाँ पे लगाया CS3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने CS3। यहाँ पे H, यहाँ पे H। चलो नंबर ऑफ सिग्नल, लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ सिग्नल अंजलि बताएगी। हाँ सर, सोच रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर। कोई टेंशन नहीं है। टेक योर टाइम एंड गिव द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ सिग्नल सर 7। गुड, करेक्ट आंसर। खुशी मिल रही है आगे? हाँ सर, मिल तो रही है खुशी। कैसे 7 होगा? इस CS3 का अलग आएगा, हाँ सर। CS2 का अलग आएगा, हाँ, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का सेम आएगा, अलग अलग आएगा? इनका सेम है, इनका सेम। कैसे? सर इसके पड़ोस में देख CS3 है, इसके पड़ोस में ये है, इसके अलग पड़ोस अलग में है। ये अलग अलग आएगा ना, तो एक इसका आएगा, एक इसका आएगा। ठीक है? 6, 7। हाँ सर। इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। अलग आएगा, इसका भी। क्लियर? यस सर। अब मान लो सेम ग्रुप होते, ऐसे देखो सेम ग्रुप होते, ऐसे बेंजीन लगा होता, इधर भी CS3 और इधर भी CS3। सॉरी, तो लिखाएंगे दूसरे पेज पे लिखा मैं। CS3 एंड CS3 कितने नंबर ऑफ सिग्नल हो गए? क्या सिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर? हाँ सर। काट के अलग कर दो। अलग कर दिया। अब ऊपर जो अलग कर दिया उसमें देखो, ये H, ये H और ये CS3। कितने सिग्नल होंगे अंजलि? 2। 2 सिग्नल बस। जब भी सिमेट्री आए तो उसको 2 पार्ट में, जितनी भी पार्ट की सिमेट्री है उतने पार्ट में कट पिट करके अलग कर लो। क्लियर? क्लियर? सर तो एक मतलब क्या दोबारा हुआ? बताना, आपने लास्ट में लाइन क्या बोली? मैंने कहा कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ गई तो उसे कट करके अलग कर लेंगे और सबको लिख देंगे। यस सर, ओके। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल साइड वालों की वजह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। यस और नो? बोलो बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे CS2 है, ये CS3 है, इधर तो ये 2 है, तो स्प्लिटिंग क्या होती है? 2
2ni+1 है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल यही तो होता है। अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। अब बताओ, CH2 का CH3 की वजह से स्प्लिट होगा? बोलो, ये CH2 का CH पड़ोसी की वजह से स्प्लिट होता है ना, तो 3 मतलब इसका क्वाड्रेट आएगा, और इस CH3 का क्या आएगा? ट्रिपलेट, है ना। तो ये ध्यान देना कि क्वाड्रेट कब आएगा, कब ट्रिपलेट आएगा। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अरे हाँ, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड ट्राई पॉलीसैकेराइड्स। यस और नो? मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज टाइप के कंपाउंड थे। ये सारे जो होते हैं ये डी वाले होते हैं। इसके अंदर आपने एनोमर, एपीमर, ये सब चीजें देख लेनी है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या क्या होते हैं? 3 चीजें होती है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ओके, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च, ये सुनो, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है? स्टार्च। बोलो बच्चों, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है? सर वो ऊपर CH2, लेफ्ट राइट राइट राइट, हाँ राइट, लेफ्ट। लेफ्ट, राइट, राइट। तो ये राइट होगा, उसके बाद लेफ्ट, फिर राइट, फिर आपका राइट, ये H, फिर लास्ट में आपका CH2OH। इसी से आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका डी ग्लूकोज है ना। इसी से आपका अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, इसी से आपका बीटा डी ग्लूकोज बनता है ना। बोलो बच्चों, हाँ सर। क्या था वो? ये वाला कार्बन जाके इधर अटैक करेगा, है ना। अल्फा OH राइट साइड आएगा, है ना। बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, ये OH ऐसे ही रहेगा, OH 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 एंड देन CH2OH। क्लियर? ये किसका एग्जांपल है? बोलो बच्चों। अगर इफ OH, अगर OH किधर की तरफ चला जाए, राइट लेफ्ट साइड, तो क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोज। यस और नो? इसी तो बीटा डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है किसी को? साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको? बोलो बच्चों। राइट साइड, जो ग्रुप राइट साइड होते हैं उसको कहाँ रखते हैं? डाउन। और लेफ्ट साइड वालों को कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड वाले को कहाँ रखते हैं बच्चों? अप। यस और नो? यस सर। बस यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 पे OH किधर है? राइट साइड नीचे, राइट साइड नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, यहाँ पे H और ये CH2OH। क्लियर?
बाकी Yes, उस sir. वाले में पहला वाला डिफरेंस होगा, बाकी सारी कहानी सेम। OH OH EH और ये CH2H। क्लियर? सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह देख लेनी है आपको, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज वगैरह। डाइसैकेराइड्स, व्हाट इज द डाइसैकेराइड्स? बोलो बच्चों। सुक्रोज क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। कौन कौन सा कार्बन कंबाइन करता है? C1 plus C4 या C1 plus C2? टेल मी। तो C1 plus C2। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, यस और नो? हाँ सर। माल्टोज क्या होता है? उसमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज। क्लियर? C1 C4। हाँ सर। लैक्टोज क्या होता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, इसमें भी C1 C4 लिंकेज, यस और नो? हाँ सर। बोलो। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? अगर स्टार्च की बात करो आप, तो स्टार्च क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। हाँ सर। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर? और C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस और नो? यस सर। C1 C4 लिंकेज लिखा, C1 C4 लिंकेज। बोलो। यस सर। एनी डाउट अप टू हियर? बोलो। नो सर। हमने सारे चैप्टर की रिवीजन कर लिए। बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। रिवीजन यहाँ पे एंड होता है।